Good morning to my dear students. Students, as we are discussing about cell cycle and cell division, in our previous video we discussed about mitosis. And right now I will discuss a new kind of cell division, and the cell division is meiosis. Students, I want to tell you that meiosis is a kind of cell division after which the number of chromosomes remain just half in the daughter cells. Means suppose a parental cell has 24 chromosomes, so while it will undergo meiosis and it is going to form a daughter cell, so definitely the daughter cell will have just half number of chromosomes. Means the daughter cell will have only 12 chromosomes. Means the number of chromosomes are going to reduce here, they are remaining just half in the daughter cells. So that's why this cell division is called as reductional division. As in mitosis the number of chromosomes were remaining same, but here in the case of the meiosis the number of chromosomes are going to be just half. So that's why this is called reductional division. And meiosis is a very important kind of cell division. It involves two different steps, or it involves two successive or sequential cycles, ठीक है, of nuclear as well as the cell division. And these are referred as meiosis first and meiosis 2. And I want to tell you that this meiosis is very important process, because due to this only the number of chromosome can remain same in parent as well as the offspring. Why I am going to tell you that? While our gamete formation occurs, so means while the sperm are going to form in male or egg is going to form in female. If I am talking about plants, while pollen grains are going to form in plants as well as the egg are going to form in plant, so at the same time meiosis will occur, because the gametes will have only half number of chromosome. When two male and female gamete will fuse together, then only the number of the chromosome will remain same as in the parent was, ठीक है. So this is very important kind of डिवीजन. एंड वेयर कैन इट अकर, आई एम गोइंग टू टेल यू दैट. तो कहाँ कहाँ चांसेस है मियोसिस जहाँ देखने को मिल सकती है. द मियोसिस अकर्स during the germination of the zygote. There are several plants who are haplontic in nature, means their main plant body is haploid in nature. तो once the zygote forms, तो zygote में तुरंत meiosis होती है, और meiosis होने के बाद आपकी haplontic plant body बन जाती है, ठीक है. इन समटाइम्स ड्यूरिंग द स्पोर फॉर्मेशन, क्योंकि जब भी स्पोर बनते हैं, स्पोर आर हैप्लॉइड इन नेचर, तो ड्यूरिंग द स्पोर फॉर्मेशन इन स्पोर मदर सेल द मियोसिस कैन अकर. एंड सिमिलरली वन थिंग आई ऑलरेडी मैंशनड विद यू कि ड्यूरिंग द गैमेट टाइम फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट, ड्यूरिंग द टाइम ऑफ द गैमेट फॉर्मेशन द मियोसिस अकर्स, बिकॉज इट मेंटेन्स द नंबर ऑफ क्रोमोजोम इन पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग इक्वल, ठीक है. नाउ how the meiosis occurs, I am going to tell you that, as I mentioned earlier, that the meiosis is a cyclic process and it occurs into two sequential or successive phases, meiosis first और meiosis second, ठीक है. तो and meiosis first and meiosis second involves its own karyokinesis as well as cytokinesis. So today I am talking about only the first phase, meiosis phase, and especially I will talk about the prophase of the meiosis first, ठीक है. एंड आई वांट टू टेल यू दैट द मियोसिस फर्स्ट कंटेन्स वेरियस फेजेस, प्रोफेज फर्स्ट, मेटाफेज फर्स्ट, एनाफेज फर्स्ट, टीलोफेज फर्स्ट. तो टुडे आई विल टॉक अबाउट ओनली द प्रोफेज फर्स्ट. एंड आई वांट टू टेल यू दैट दिस प्रोफेज फर्स्ट इज अ क्वाइट लॉन्गर प्रोसेस, मतलब ये बहुत लंबी ड्यूरेशन तक चलने वाली प्रोसेस है, ठीक है. इट्स टिपिकली लॉन्गर फेज कंसिस्टिंग ऑफ अ कॉम्प्लेक्स इवेंट्स एंड डिवाइडेड इनटू 5 स्टेजेस. तो प्रोफेज फर्स्ट जो है मियोसिस की सबसे लंबे चलने वाली प्रोसेस है, एंड इट इज सब डिवाइडेड इनटू 5 डिफरेंट स्टेजेस: leptotin, zygotin, packaging, and diplotin and dikinesis. So these are the 5 different steps. Initially I am talking about leptotin, ठीक है. What happens in the leptotin phase? I am going to tell you that this is the first phase of the prophase first. In this phase, condensation and coiling of the chromatin fiber lead to the formation of the distinct chromosome. As we know that the chromosomes are just in the form of the chromatin fiber in a undividing cell. तो here in the leptotin what happens, these chromatin fiber start to condense together, और एक कंडेंस होने के बाद दे फॉर्म अ क्रोमोजोमल लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है. द क्रोमोजोम्स अपीयर अ फाइन सिंगल थ्रेड ऑफ बीट्स. तो इस स्टेज पे जब लेप्टोटीन चल रही होती है तो यहाँ पे आपके क्रोमेटिन फाइबर कंडेंस होना स्टार्ट होते हैं, और कंडेंस होकर के एक मोटा सा थ्रेड सा बना लेते हैं. द क्रोमोजोम अपीयर एज ए फाइन सिंगल थ्रेड. अभी आपको केवल एक सिंगल थ्रेड के भी क्लियरली एक्स शेप आपको नज़र नहीं आएगा क्रोमोजोम यहाँ पे. हेयर यू विल ऑब्जर्व ओनली अ फाइन सिंगल थ्रेड लाइक क्रोमोजोम, ठीक है. एज दे कॉन्ट्रैक्ट एंड बिकम थिकर,
देयर ड्यूल नेचर इज सीन। तो यहाँ पर इनका कंडेंसेशन लगातार जारी रहता है लेप्टोटीन में, और एक लंबा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर ये शो करते हैं। नाउ नेक्स्ट स्टेज कम्स, एंड द नेक्स्ट स्टेज इज कॉल्ड जाइगोटीन। नाउ व्हाट हैपन्स इन द जाइगोटीन, द होमोलोगस क्रोमोजोम स्टार्ट पेयरिंग। अब जाइगोटीन आते आते जो आपका क्रोमोजोम है वो एक्स शेप का स्ट्रक्चर लेना स्टार्ट कर देता है, और ऐसे दो क्रोमोजोम आपस में एक दूसरे के पास आ जाते हैं, एंड दोज क्रोमोजोम्स हु आर प्रेजेंट इन पेयर दीज आर कॉल्ड एज होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोजोम। और होमोलोगस पेयरिंग या साइनेप्सिस इसको हम बोलते हैं, ये नज़र आना शुरू हो जाता है। इट इज़ अकम्पेन्ड बाय द फॉर्मेशन ऑफ द सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। तो और इसके साथ साथ आपके जो दो आपके क्रोमोजोम आसपास आ रहे हैं तो वो एक कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, इस कॉम्प्लेक्स को बोलते हैं सिनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स। एंड द क्रोमोजोम अकर इन द फॉर्म ऑफ द बाइवेलेंट। तो इसको आपको दो अलग अलग क्रोमोजोम साथ साथ पेयरिंग बनाते हुए साफ साफ नजर आएंगे, एंड दिस स्ट्रक्चर इज कॉल्ड बाइवेलेंट। नाउ द थर्ड स्टेप स्टार्ट, द थर्ड फेज स्टार्ट्स, एंड द थर्ड फेज इज कॉल्ड पैकेटिन। Now actually what is packetin, I am going to tell you that in packetin the chromosomes are going to become more condensed or more thicker or more shorter, and two sister chromatids of each chromosome become visible, and the bivalent becomes tetrad। तो आपको दो क्लियर एक्स शेप का आपको क्रोमोजोम नज़र आना स्टार्ट हो जाएगा, और इसमें आपको सिस्टर क्रोमेटिड जो हैं वो आपस में साफ साफ नजर आएंगे। तो यानी कि दो सिस्टर क्रोमेटिड एक क्रोमोजोम के पास हो गई, दो सिस्टर क्रोमेटिड दूसरे क्रोमोजोम के पास हो गई, क्योंकि दोनों पेयर में हैं, और इस तरह से आपको एक बाइवेलेंट या एक टेट्राड की तरह का स्ट्रक्चर नज़र आना स्टार्ट हो जाएगा। और यहीं पर ठीक इसी पैकेटिन पॉइंट पे दो क्रोमोजोम जो कि पेयर में हैं उन दोनों क्रोमोजोम के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, यानी पहले वाले क्रोमोजोम का एक क्रोमेटिड और दूसरे वाले क्रोमोजोम का दूसरा क्रोमेटिड, जिनको हम नॉन सिस्टर कह सकते हैं। अगर एक ही क्रोमोजोम के क्रोमेटिड हैं तो वो सिस्टर क्रोमेटिड हो गए, दो अलग अलग क्रोमोजोम्स के क्रोमेटिड हैं उनको नॉन सिस्टर क्रोमेटिड बोल देंगे। तो यहाँ पे जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड हैं वो आपस में क्रॉसिंग ओवर करना स्टार्ट करते हैं। नाउ हियर इन दिस पिक्चर यू कैन सी दैट इन द लेप्टोटीन यू आर ऑब्जर्विंग ओनली थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, इन जाइगोटीन यू आर ऑब्जर्विंग बाइवेलेंट टाइप स्ट्रक्चर, एंड हियर इन द पैकेटिन यू आर ऑब्जर्विंग टू नॉन सिस्टर क्रोमेटिड, मतलब दो अलग अलग क्रोमोजोम जो पेयर में प्रेजेंट हैं उनके नॉन सिस्टर क्रोमेटिड जो हैं वो क्रॉस ओवर करना स्टार्ट करते हैं। क्रॉस ओवर मतलब वो एक पॉइंट पे एक दूसरे को टच करते हैं और वहाँ से अपना जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट फेज स्टार्ट्स, दिस इज कॉल्ड डिप्लोटीन। डिप्लोटीन में क्रॉसिंग ओवर कंप्लीट हो जाती है, यानी कि दो होमोलोगस पेयर पे जो क्रोमोजोम थे इनके जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स थे ये आपस में अपना जेनेटिक मटेरियल एक्सचेंज कर चुके हैं। ठीक है, एंड द टू होमोलोगस क्रोमोजोम स्टार्ट सेपरेटिंग फ्रॉम ईच अदर। तो होमोलोगस क्रोमोजोम अभी तक चिपके हुए थे, अभी एक दूसरे से सेपरेट होना स्टार्ट होते हैं, तो केवल एक पॉइंट पे इनका अटैचमेंट नजर आता है जहाँ पे एक्स शेप स्ट्रक्चर बनता है, एंड दिस एक्स शेप स्ट्रक्चर इज कॉल्ड कायस्माटा। ठीक है, हेयर यू कैन सी कायस्माटा ओनली। ठीक है, एंड लास्ट स्टेप इज कॉल्ड डाइकाइनेसिस। व्हाट हैपेंस इन द डाइकाइनेसिस, द कायस्माटा मूव्स टू द टिप एंड मे स्लिप ऑफ। और यहाँ पर जो एक पॉइंट पे जिस पे चिपके हुए थे काइजमाटा पे वो पॉइंट से भी छूट जाते हैं होमोलोगस क्रोमोजोम एक दूसरे से, और एक दूसरे से कम्प्लीटली सेपरेट हो जाते हैं, और जो क्रोमोजोम है फुल्ली कंडेंस है आपको नजर आएगा। अब इसके साथ साथ न्यूक्लियोलस डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाएगी, न्यूक्लियर साथ में न्यूक्लियर एनवेलप इज ऑल्सो गोइंग टू बी डिसअपियर, एंड स्पिंडल फॉर्मेशन इज गोइंग टू form for the next phases of the cell division. So in this way I am concluding. Today we discussed prophase first, and first stage is leptotin, second is zygotin, third is pachytin, and the fourth is diplotin, and the last one is dikinesis. And the most important point in first phase leptotin, the chromatin fiber are going to be condensed and forming a thread like structure, like a bead like structure, while in the zygotin these homologous pairs of the chromosome are going to be appear and they are forming bivalent. In pachytin the non sister chromatids of two homologous chromosomes are going to exchange their genetic material, ठीक है, due to the crossing over. And in the fourth step diplotin, the homologous chromosome start to separate from each other, but they are attached in a single point forming a X shape or structure which is called chiasmata. And finally in the dikinesis the homologous pair of chromosomes are going to be separated out from each other. ठीक है, and this is all enough about prophase first. So I hope so you understood the concept of prophase. The next stages I will discuss tomorrow. Thank you, bye bye, and have a nice day.